Okay. So in today's class, we will be discussing about locomotion and the movement. Okay. For 11th standard students, this might be a revision. For 12th standard students, this is a preparation for NEET and CET. Okay. This chapter is little bit complicated because it has some topics like muscle contraction and different bones in our body like that. So we have to remember a lot of terms regarding muscle and bones. That's the main hurdle challenge you have to face while learning this chapter. So anyway, let's start with the types of movements. Locomotion and movement. These are two different concepts. Movement means by standing somewhere, if you are doing any action, that is movement. Okay, for example, if you are taking this pen, if you are saying hi to a friend, blinking your eyes, everything will be movement. Okay, but if your displacement occurs, your position is changing, then that is said to be locomotion. Okay, so imagine that I'm walking from this place to this place, then it means locomotion. Okay, but यहाँ पे खड़े होके मैं कुछ action कर रहे हैं तो that is movement. Okay, so movement can be of three different types: amoeboid, ciliary, muscular. One more I'm going to add, flagellar. ऐसे four different type of movement हो सकता है. Which are they? Amoeboid. अमीबा की तरह. सो अमीबा कैसे दिखता है? अमीबा को परफेक्ट शेप कुछ नहीं है, अमॉर्फस ऑर्गेनिज्म है. इट हैज इट्स pseudopodia. See, this structure, finger-like projection, is called a pseudopodia. With the help of pseudopodia, if a motion is occurring, then that is amoeboid movement. Okay, सेल की एक्सटेंशन की वजह से, pseudopodia की वजह से मूवमेंट हो रहा है. हमारे बॉडी में मैक्रोफेजेस जो होता है ना, मैक्रोफेज क्या है फाल्गुनी? अनन्या, व्हाट इज अ मैक्रोफेज? इज इट व्हाट काइंड ऑफ ब्लड सेल इट इज? व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है मैक्रोफेज. ओके, सो मैक्रोफेजेस की मूवमेंट अमीबॉइड मूवमेंट माना जाते हैं. नाउ सीलियरी मूवमेंट, सीलिया की मदद से जो मूव करते हैं. सीलिया, यू नो, पैरामीशियम में सीलिया होता है. थ्रू आउट द बॉडी सरफेस देयर इज hair like structures, that is called a cilia. तो cilia की मदद से मूव कर रहे हैं तो that is ciliary movement. हमारे बॉडी में ciliary movement are shown by ciliated epithelial cells which is present in respiratory tract as well as oviduct in females. oviduct और fallopian tube में ovum को पुश करके 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 यूट्रस तक लेके आने के लिए we have ciliated epithelial cells. epithelial cells के ऊपर अगर ऐसे small cilia like structures है तो उसको ciliated epithelial cells बोलते हैं. Okay, so this movement is shown in paramecium as well as inside our body. Ciliated epithelial cells are showing ciliary movement. Coming to muscular movement. Muscular movement muscles की वजह से हो रहा है. वो हमारा body movements पूरा legs, arms जो भी movement रहता है वो सब muscular movement है. Even tongue की movement, tongue is also a muscle, skeletal muscle है वो, तो muscle में muscular movement में वो भी आते हैं. अमीबॉइड मूवमेंट हो गया. वन मोर मूवमेंट में ऐड किया था विच वाज दैट फ्लैजेलर मूवमेंट. विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला कोई मूवमेंट हो रहा है तो फ्लैजेलर मूवमेंट की एग्जांपल में किसको होता है फ्लैजेला? एनी गस? हु इज दिस? यूग्लिना. यूग्लिना हैज फ्लैजेला. तो यूग्लिना की मूवमेंट है फ्लैजेलोइड मूवमेंट. एंड ह्यूमन बॉडी में स्पर्म करते हैं मूवमेंट बिकॉज स्पर्म हैज ए टेल, राइट? फ्लैजेला बोलते हैं उसको बायोलॉजिकली. So sperm की movement flagellar movement माना जाता है. So which are the four different types of movement? Amoeboid movement. Repeat after me. Amoeboid movement, ciliary movement, muscular movement, flagellar movement. Okay, movement का रिविजन हो चुका है. Now muscle tissues. हमको इस चैप्टर में only muscular movement में फोकस करना है. Muscle tissues are of three different types. ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं. Okay, which are the three different muscle? Smooth muscle, cardiac muscle, skeletal muscle. Smooth muscle में कैसा है कि स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं. स्पिंडल मतलब आइस की शेप वैसा है ना, दोनों एंड पे पॉइंटेड बट मिडिल ब्रॉड होता है. लीफ की शेप वैसा है ना, स्पिंडल शेप. सो ऐसे स्पिंडल शेप में मसल्स ऑकर हो रहा है तो दैट इज स्मूथ मसल. इसमें कुछ भी स्ट्राइएशंस देख नहीं सकते, सो इसलिए उसको नॉन स्ट्राइएटेड और अनस्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं. देयर आर नो मार्किंग्स इनसाइड दिस मसल्स. ओके,
as यूजुअल एक सेल में न्यूक्लियस होता है, तो इसी तरह इसमें भी सिंगल न्यूक्लियस रहता है, दिस इज यूनिन्यूक्लिएटेड। ओके, ये मसल किधर पाए जाते हैं? यूटरस में, इनसाइड द बॉडी, सराउंडिंग द ऑर्गन्स, इसको विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, विसरल मसल्स है वो। ओके, हमारा बॉडी की कैविटी है विसरा, विसरा में जो भी ऑर्गन्स है उसको कवर करते हुए, एज वेल एज आई की आइरिस जो होता है, आइरिस की मिड, आइरिस इज लाइक द पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आई, कुछ लोगों को वो ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, दैट पार्ट, दैट आइरिस की जो मसल्स रहता है दैट इज स्मूथ मसल। यूटरस की मसल्स स्मूथ मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स लाइक दैट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो। क्लियर? देन ये अनब्रांच्ड है, देख सकते हैं ना, देयर आर नो ब्रांचेस, एवरीथिंग इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सेपरेटेड, वेल सेपरेटेड। यहाँ पे देखा तो कार्डियक मसल देख सकते हैं, कार्डियक मसल्स कैसा है कि सिलिंड्रिकल है बट इट विल बी ब्रांच्ड लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस देख सकते हैं, एंड they are multi, they are uninucleated, they are not multinucleated, they are uninucleated। कार्डियक मसल भी uninucleated है स्मूथ मसल की तरह, उसमें स्ट्राइएशंस रहता है, ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल स्ट्राइएशंस रहता है किधर? कार्डियक मसल्स में, एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, इसलिए उसका नाम कार्डियक मसल हुआ। देन व्हाट अबाउट स्केलेटल मसल? स्केलेटल मसल बोन से अटैच किया हुआ मसल है, इसलिए उसका नाम स्केलेटल मसल है। तो लोकेशन समझा, इंटरनल बॉडी, इट इज प्रेजेंट इन हार्ट, दिस इज प्रेजेंट इन अराउंड बोन्स। देन स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइएशंस रहता है, इसलिए उसको स्ट्राइएटेड मसल बोलना पड़ेगा, स्ट्राइएटेड मसल। उसकी एक मसल की स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो इट विल अपीयर लाइक दिस, देखो, you can see alternated light dark light dark light dark bands। तो alternate light and dark bands, dark band को मैंने यहाँ पे थिक लाइंस शेडेड किया है, तो ऐसे स्ट्राइएशंस देख सकते हैं इसको, इसलिए इसको स्ट्राइएटेड मसल बोलते हैं। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है स्मूथ मसल, उसमें मार्किंग्स कुछ भी नहीं, इसमें मार्किंग्स रहता है। तो बोन से अटैच किया हुआ मसल्स को मार्किंग्स रहता है, तो इसको स्ट्राइएटेड मसल बोलते हैं। एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इधर भी एक न्यूक्लियस, इधर भी एक न्यूक्लियस, इधर भी एक न्यूक्लियस, एक सेल की अलग अलग लोकेशन पे उसको न्यूक्लियस देख सकते हैं। दिस इज द ओनली मल्टी न्यूक्लिएटेड टिश्यू, मल्टी न्यूक्लिएटेड टिश्यू में आता है, मसल में आता है ये, बाकी दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड है। एंड दिस इज अनब्रांच्ड लाइक स्मूथ मसल। कार्डियक मसल भी सिलिंड्रिकल है, ये भी सिलिंड्रिकल है, लेकिन डिफरेंस क्या है? कार्डियक ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है। कार्डियक में एक ही न्यूक्लियस है, इसमें मल्टी न्यूक्लियस है। कार्डियक हार्ट में पाए जाते हैं, ये स्केलेटन के ऊपर पाए जाते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन मसल्स ऑफ टंग, लिम्ब, फोर लिम्स। सो यू माइट बी वंडरिंग टंग में किधर है स्केलेटन, बट टंग इज अटैच्ड टू, यहाँ पे हायोइड नामक एक बोन रहता है, आई विल शो यू, वो बोन्स में अटैच्ड है, तो ऑलरेडी अटैच्ड टू द बोन्स, सो दिस इज अ स्केलेटल मसल टंग। टंग के अंदर स्केलेटन नहीं, लेकिन दैट इज अटैच्ड टू हायोइड बोन ओवर हियर, तो इसकी वजह से उसको स्केलेटल मसल माना जाता है। समझा? एंड हाथ में, पैर में जो भी मसल्स है वो सब स्केलेटल मसल्स है। सो इस चैप्टर में हम इसको फोकस करना पड़ेगा। देखो, अलग अलग मूवमेंट्स में मस्कुलर मूवमेंट्स को हमने सेलेक्ट किया इस चैप्टर में। मस्कुलर मूवमेंट्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर, उसमें हम स्केलेटल मसल को फोकस कर रहा है इस चैप्टर में। तो समझा हमारा फोकस एरिया किधर है, कौन सा मसल है? स्केलेटल मसल। मूविंग टू स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अभी मैं जो बोल रहा है दैट इज ओनली विथ रेस्पेक्ट टू स्केलेटल मसल। ओके, तो मसल्स आर एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए बंच, ऐसे एक बंडल में देख सकते हैं मसल्स, ऐसे बोन से निकाल, स्किन, इफ यू कट ओपन द स्किन यू कैन सी मसल्स लाइक अ बंच। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कवरिंग होता है, द एंटायर मसल को कवर करते हुए जो कवरिंग होता है, उस कवरिंग को बोलना पड़ेगा विच फासिया। फासिया इज द कोलाजिनस शीथ सराउंडिंग द मसल। ये नीट में पूछा है, फासिया क्या है? एंटायर मसल बंच को कवर करते हुए जो कोलाजिनस शीथ मेम्ब्रेन रहता है उसको फासिया बोलते हैं। ओके, देन ये फासिया के अंदर यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट फासिकल,
fascicle 1 2 3 4 5 6 ऐसे multiple fascicle you can see inside a fascia. ओके ये fascicle को अपना अपना मेम्ब्रेन कवरिंग रहता है, देखा? ओके उसको हम बोलता है एंडोमाइसियम. फासिया सबको कवर कर रहा है. फासिया के अंदर अलग अलग फासिकल रहता है, अलग अलग फासिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलता है एंडोमाइसियम. ओके नाउ इसमें से एक फासिकल तुम बाहर निकाला, उसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स देख सकते हैं. आर यू एबल टू सी मसल फाइबर्स? मसल फाइबर्स की एक मसल फाइबर की स्ट्रक्चर अभी हम डिटेल में पढ़ना चाहिए. तो देखो इसकी ऑर्डर कैसे अरेंज किया है. बहुत सारे मसल फाइबर्स एक फासिकल बनाते हैं. ऐसे बहुत सारे फासिकल एक बहुत बड़ा मसल के अंदर पाए जाते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट फासिकल्स आर सराउंडेड बाय एंडोमाइसियम, बट द एंटायर मसल इज सराउंडेड बाय फासिया. एंटायर मसल सराउंडेड बाय फासिया, उसके अंदर अलग अलग फासिकल्स सराउंडेड बाय एंडोमाइसियम. एक फासिकल, दिस इज वन फासिकल, एक फासिकल को बाहर निकाला तो उसमें मसल फाइबर्स देख सकते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट मसल फाइबर्स देखा, उसमें से एक मसल फाइबर बाहर निकाला. दिस इज मसल फाइबर, मसल फाइबर. So many muscle fibers join to form fascicle. Many fascicle join together to form a skeletal muscle. Simple. अभी एक मसल फाइबर की स्ट्रक्चर देखने के लिए जा रहा है. स्ट्रक्चर सबसे पहले मसल की स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले, मसल्स आर मेड अप ऑफ एक्चुअली प्रोटीन्स. मसल कंट्रैक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होना चाहिए. इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है एक्टिन एंड मायोसिन. मसल कंट्रैक्शन की टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स कौन कौन सा है? एक्टिन, मायोसिन. सबसे पहले हम एक्टिन के बारे में पढ़ेंगे. देखो एक्टिन इज नोन एज थिन फिलामेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मार्च द फॉलोइंग में आ सकते हैं. एक्टिन क्या है? इट इज थिन फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट beads like structures. Are you able to see this bead kind of structures which is in red color here? Red color beads, बाकी कुछ भी मत ध्यान दो, only that red color bead को ध्यान दो. So red color bead की कितना chains दिख रहा है यहाँ पे? This is one chain, this is another chain. ऐसे two chain helically wrap किया है. जैसे DNA का दो strands होता है ना, इसी तरह two beaded chain की structure है actin. हर एक बीड को हम बोलता है जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन. देखो कितना ग्लोबुलर एक्टिन मैंने सर्कल किया है यहां से यहां तक. हाँ तो ऐसे इंडिविजुअल बीड्स को जी एक्टिन बोलते हैं. एंड वन फिलामेंट जो जी एक्टिन से बनता है मोती की माला की तरह, उसको हम एफ एक्टिन बोलते हैं. फिलामेंटस एक्टिन. सो होप यू अंडरस्टूड. जी एक्टिन और एफ एक्टिन क्या है? एफ एक्टिन मोती है, जी एक्टिन मोती है, एफ एक्टिन मोती की माला है. So G actin are the individual globules protein, and वो individual globular protein से बनाया हुआ long chain का नाम है F actin. वैसे कितना F actin है एक actin में? दो. One F actin is this, another F actin is this. ऐसे helically wrap किया है. समझा? दो F actins are there. Now इसके ऊपर ये इरेज करता हूं मैंने जो मार्किंग किया है. Are you able to see a pink colored line over that actin? एक्टिन के ऊपर दो पिंक कलर्ड लाइन्स ऐसे जा रहे हैं, रोप जैसा. यहाँ पे देखा पिंक कलर्ड, दिस वन. इसको बोलता है ट्रोपोमायोसिन. बोलो मेरे साथ, ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन भी दो रहता है. दैट इज कवरिंग द एंटायर एफ एक्टिन. एक्टिन के ऊपर पूरा रैप करते हुए कौन है? ट्रोपोमायोसिन रहता है. सो ट्रोपोमायोसिन इज द प्रोटीन दैट रन क्लोज टू एफ एक्टिन. वैसे कितना रहता है? दो रहता है. एंड द थर्ड वन इज ट्रोपोनिन. आर यू एबल टू सी ब्लू कलर्ड बॉल्स हियर? 1 2 3 4. देखा ये ब्लू कलर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ ब्लू कलरेशन में जो प्रोटीन्स है दैट इज ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन. तो देखो एक्टिन के ऊपर दो और प्रोटीन्स है
tropomyosin and troponin. तो actin is like a combination of three different protein. actin का खुद का F actin रहता है, उसके ऊपर tropomyosin रहता है, उसके ऊपर troponin रहता है. इतना क्लियरली समझा? वेरी वेल. ओके, अभी देखो मायोसिन, द सेकेंड प्रोटीन. एक्टिन प्रोटीन अच्छे से हमको समझा कैसे दिखता है. अभी हम मायोसिन, द सेकेंड प्रोटीन इन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मसल इज मायोसिन. मायोसिन इज मेड अप ऑफ, देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिस लॉन्ग चेन इज कॉल्ड अ लाइट मेरोमायोसिन. दिख रहा है ऑरेंज कलर की थ्रेड जैसा दो थ्रेड्स यहाँ पे देखिए, दिस इज लाइट मेरोमायोसिन. एंड हियर यू कैन सी ए हेड रीजन, इसको क्रॉस आर्म बोलता है. दिस पार्ट इज नोन एज क्रॉस आर्म. दिस क्रॉस आर्म रीजन इज मेड अप ऑफ हेवी मेरोमायोसिन, HMM. तो मेरोमायोसिन से बनाया हुआ है मायोसिन फिलामेंट. मेरोमायोसिन 2 प्रकार का होता है, एक लाइट मेरोमायोसिन विच इज द टेल पार्ट एंड एक हेवी मेरोमायोसिन विच इज द क्रॉस आर्म पार्ट. समझा? Actin is made up of G and F actin, while myosin is made up of meromyosin. Meromyosin दो प्रकार है, LMM, HMM. LMM टेल में है, HMM क्रॉस आर्म में रहता है. यहां तक कुछ कंफ्यूजन है? सब अच्छे से समझा? अनन्या कुछ डाउट है? एक्टिन फिलामेंट फिर से बताना है. ठीक है, मैं ये कंप्लीट करूं. मायोसिन, LMM, HMM समझा? दैट इज द प्रोटीन, इंडिविजुअल प्रोटीन प्रेजेंट इन मायोसिन. यहाँ पे देखो हेड रीजन में यू कैन सी 2 डिफरेंट साइट. 2 हेड दिख रहा है यहाँ पे, उसमें हर एक हेड में 2 डिफरेंट बाइंडिंग साइट रहता है. एक एटीपी बाइंड करने के लिए, एक एक्टिन बाइंड करने के लिए. एक एटीपी बाइंड करने के लिए, ये देखो एटीपी बाइंड करने के लिए, और एक एक्टिन बाइंड करने के लिए. So individual heads में क्या रहता है? 2 different binding sites are there. One is for the ATP binding, another one is for actin binding. तो actin binding site किधर है? actin में नहीं, मायोसिन में है, याद रखो. तो ATP binding site भी किधर रहता है? मायोसिन में रहता है. अभी मैं actin फिर से समझा रहा हूं. Actin is made up of 2 chains of G actin. बीड्स को जी एक्टिन बोलता है, बट द एंटायर चेन इज नोन एज एफ एक्टिन. वैसे एक एफ एक्टिन यहाँ पे, दूसरा एफ एक्टिन यहाँ पे, ऐसा रन कर रहा है वो. वन एफ एक्टिन, दूसरा एफ एक्टिन. उसके ऊपर ये जो पर्पल कलर की जो कवर करते हुए रनिंग, देयर यू कैन सी वन मोर प्रोटीन दैट इज ट्रोपोमायोसिन. ये देखा था? Are you able to see this pink colored line? That is tropomyosin. And in different part of this actin filament, there is troponin also. Troponin यहाँ पे है. Now the question is, अगर मायोसिन में actin binding site है तो actin में कौन सा site होना चाहिए नेहा? अगर मायोसिन में actin bind करने का जगह है तो actin में क्या होना चाहिए? मायोसिन binding site होना चाहिए. मायोसिन binding site is not in myosin. That is in actin. वो किधर है? वो तो लेबल ही नहीं किया है. It is masked by troponin. It is masked by whom? Troponin. ये troponin वहां से हटाना पड़ेगा. Then only we can visualize that what myosin binding site. अभी के लिए myosin binding site hidden है because of troponin. याद रखो. इतना अच्छे से समझा? Okay. Moving to next slide. See. अगर एक स्केलेटल मसल माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है तो आई टोल्ड यू इट इज स्ट्राइएटेड मसल. व्हाई? बिकॉज वी कैन सी ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स. ये देख सकते हैं ना? तो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स यहां पे भी तुम लोगों को देख सकते हैं. दिस व्हाइट कलर में जो है दैट इज द लाइट बैंड. 2 व्हाइट कलर की बैंड के बीच में यू कैन सी डार्क बैंड ऑल्सो. डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड. दिख रहा है? हाँ. तो इस लाइट एंड डार्क बैंड्स को आई एम गोइंग टू डायग्रामेटिकली ड्रॉ हियर. दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये देता है एग्जाम्स में एंड यू आर सपोज्ड टू राइट डिफरेंट पार्ट्स. सो यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर लाइट एंड डार्क बैंड मिला के सी
Are you able to see this light band? This light band is containing, यहाँ पे देखो, actin and myosin are arranged in the myofibril. First of all, let me explain what is I band. I band means it is the light band. Light band is composed of thin filament. What is the thin filament? Actin or myosin? कौन सा है thin? Actin. तो यहाँ पे देखो I band. Where is I band? This one. See, ये blue lines किसको represent कर रहा है? This blue line. Are you able to see this blue line? इसको मैंने अभी yellow कर रहे हैं. This blue lines are representing I band. I band is the short form for isotropic band. Isotropic band में कौन सा प्रोटीन है? Actin, the thin filament. Okay, यहाँ पे भी देख सकते हैं ना I band. Are able to see I band. So blue colored lines in this diagram represent I band. I band is made up of actin. It represents the light region. Concept समझा? A band मतलब actin. I is made up of actin and it is light in color. ऐसे याद रखो. Now this red colored things, this is representing myosin, thick filament. So ये red color की जो band होता है उसको हम बोलते हैं A band. This red colored band is known as dark band दिया है ना, इसको A band बोलते हैं. A band. यहाँ पे ऑलरेडी दिया है A band और anisotropic band. तो ब्लू कलर में जो भी है दैट रिप्रेजेंट द लाइट रीजन व्हिच इज मेड अप ऑफ एक्टिन. रेड कलर में जो भी दिया है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ए बैंड, अनिसोट्रोपिक बैंड व्हिच इज मेड अप ऑफ मायोसिन. तो आई बैंड में एक्टिन, ए बैंड में मायोसिन. आई बैंड में एक्टिन, ए बैंड में मायोसिन. इतना क्लियर हो गया? अभी देखिए आई बैंड की सेंटर लाइन, आई बैंड की सेंटर लाइन को बोलता है इजेड लाइन. आई बैंड की सेंट्रल लाइन को क्या बोलता है? इजेड लाइन. यहां पे भी एक इजेड लाइन देख सकते हैं क्योंकि ये ब्लू लाइन भी आई बैंड है. सो दो आई बैंड के बीच की जो सेंट्रल लाइन होता है, ये लाइन आई बैंड मतलब लाइट बैंड है ना, लाइट बैंड की सेंट्रल लाइन जो होता है उसका नाम है इजेड लाइन. दो इजेड लाइन के बीच में जो रीजन रहता है उसको बोलते हैं सार्कोमियर, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मसल. सो व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मसल? इट इज कॉल्ड अ सार्कोमियर. सार्कोमियर किसके बीच में आते हैं? बिटवीन टू इजेड लाइन. दो इजेड लाइन. इजेड लाइन क्या है? लाइट बैंड की सेंटर मतलब आई बैंड की सेंटर. समझा? तो सार्कोमियर इट इज द सिंगल मसल यूनिट. अभी सार्कोमियर की ये बैंड दिख रहा है, ए बैंड इज विच कलर फाल्गुनी? रेड कलर. अगर मैंने ब्लू कलर लाइन का आई बैंड का सेंट्रल लाइन इजेड बोला तो देयर शुड बी अनदर सेंट्रल लाइन इन द रेड कलर आल्सो. ए बैंड को भी सेंट्रल लाइन होना चाहिए. दैट सेंट्रल लाइन इज नोन एज एम लाइन. सो इजेड लाइन आई बैंड का सेंटर है, एम लाइन ए बैंड का सेंटर है. ये दो पॉइंट समझा अच्छे से? यस. नाउ कमिंग टू मसल कंट्रैक्शन. मसल कंट्रैक्ट करते टाइम में क्या होता है कि ये दो इजेड लाइन पास में आते हैं. सार्कोमियर की लेंथ कम होगा या ब्रॉडर होगा? कम, शॉर्टर होता है. सार्कोमियर को अभी देखो यहां से लेके यहां तक है सार्कोमियर, वो सार्कोमियर की विड्थ कम होता है. समझा? मतलब इजेड लाइंस कम क्लोजर और मूव अवे. कम क्लोजर, इजेड लाइंस विल कम क्लोजर. while M लाइन को कुछ चेंज होगा क्या? M लाइन इज इन द सेंटर ऑफ A बैंड ना, तो उसको कुछ चेंज नहीं होता है. एंड वन थिंग इज, आर यू एबल टू सी देयर इज अ स्पेसिफिक पार्ट नियर टू द M लाइन वेयर ओनली दैट रेड कलर इज विजिबल. यहाँ पे देखा ओनली रेड कलर ही आ रहा है, दैट A बैंड ही आ रहा है, I बैंड इज नॉट इवन टचिंग दैट. ओके, सो एक्टिन प्रोटीन इधर तक ही है. देन सेंट्रल रीजन पूरा मायोसिन से भरा है सार्कोमियर की एम लाइन के सराउंडिंग. सो सार्कोमियर की एम लाइन, उसकी सराउंडिंग में देयर इज अ रीजन वेयर ओनली मायोसिन इज फाउंड. ओनली मायोसिन इज फाउंड. उस रीजन का नाम है एच जोन. सो व्हाट इज एच जोन?
the region around the M line, which is in the middle of the A band, where only myosin is found. समझा? तो H zone भी क्या होता है? कम होता है अगर मसल कंट्रैक्ट हो रहा है, तो बिकॉज ये पास में आएगा, ब्लू लाइंस विल कम क्लोज टुगेदर, सो H zone will also disappear while extreme contraction is happening. ये फिर से बोलना है या अच्छे से समझा? स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर फिर से बोलना है या अच्छे से समझा? क्या करना है बोलो? फिर से बोलना है, डेफिनेटली आई विल से. You can see in this diagram there are alternative light and dark bands. Light band को I band बोलते हैं. This light band is called a I band. And the dark band is called a A band. First point अच्छे से समझा? Light colored region को I band, dark colored region को A band. I band की center portion में एक line है that is known as Z line. I band is made up of actin, वो भी बोलना था. Second point is I band is made up of actin, A band is made up of myosin. I band की center की line Z line. This line is called a Z line. दो Z line की बीच में जो region है that is called a sarcomere. So this is one sarcomere. Z line या zigzag में जो जा रहा है that is Z line. देखा? Z line के region in between, यहाँ से लेके यहाँ तक जो region है that is known as sarcomere. Similar to Z line is the center of I band, right? इसी तरह A band की center है M line. A band की center है M line. और ये M line की आसपास में there is a region where only myosin is found. This particular region में circle किया हुआ region, only red colored myosin is present. That region is known as H zone. While contraction, Z line will come close together, reducing the width of sarcomere so that I band will come close together. Therefore, H zone will disappear. इतना अच्छे से समझा? Okay, I band, A band, Z line, M line, H zone. कंट्रैक्शन में कौन पास में आ रहा है, किसका विड्थ कम हो रहा है, इतना अच्छे से समझा? वेरी गुड. क्योंकि वो टॉपिक से पूछता है बहुत ज्यादा सवाल. अभी देखिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए क्या आना पड़ेगा? ब्रेन हैज टू सेंड इंपल्सेस, राइट? बिकॉज स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी. वो पॉइंट मिस किया, पहले बोलना था. कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी बिकॉज दैट्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल. स्मूथ मसल्स आर आल्सो इनवॉलंटरी बिकॉज क्या डिलीवरी की टाइम में क्या मम्मी को रोक सकते हैं डिलीवरी? नो, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन इज कैन नॉट बी स्टॉप्ड, कंट्रोल्ड. सो दैट इज इनवॉलंटरी. तो ओनली मसल विच इज अंडर आवर कंट्रोल इज स्केलेटल मसल. ये हमारी विल के अकॉर्डिंगली हम करते हैं ना, बात करते टाइम में हमारे विल के अकॉर्डिंगली बात कर रहा है ना, अनकॉन्शियसली तो बात नहीं कर रहे हैं ना. सो दैट इज इट. सो हमारी विल एंड विशेस के अनुसार हम मूव कर रहा है स्केलेटल मसल. तो इसके लिए विल एंड विश मतलब कौन, कहां से आना पड़ेगा? ब्रेन से आना पड़ेगा. सो ब्रेन विल बी सेंडिंग सम इंपल्सेस दैट इज पासिंग थ्रू न्यूरॉन्स. स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को न्यूरॉन्स, you have studied this in 10th standard, right? Neurons are the cells present in brain, spinal cord and all the sense organs में वो connected है. So neurons क्या करना पड़ेगा? Impulses लेके, ये neurons की axonite है, न्यूरॉन की एंड पोर्शन को एक्सोनाइट बोलता है. ओके, वो एक्सोनाइट तक लेके आया किसको? इंपल्सेस को. मतलब कंट्रैक्ट करने के लिए इंपल्सेस ब्रेन न्यूरॉन्स की वजह से मसल तक लेके आया. एंड देयर इज अ जंक्शन इन बिटवीन द न्यूरॉन एंड द मसल. मसल की शुरुआत और न्यूरॉन की एंडिंग के बीच में जो जंक्शन रहता है दैट इज नोन एज एनएम जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इंपल्सेस ट्रांसफर होने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत है. दिस न्यूरोट्रांसमीटर, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स जो अभी 12th में जा रहे हैं उन लोगों के लिए अभी 12th में ही पढ़ेंगे तुम लोग. न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल्स व्हिच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस इन बिटवीन द गैप. न्यूरॉन और मसल के बीच में वो न्यूरोट्रांसमीटर काम करना पड़ेगा. असेटाइल कोलिन इज अ फेमस न्यूरोट्रांसमीटर, वही काम करते हैं मसल कंट्रैक्शन में. तो ब्रेन ने न्यूरॉन को इंपल्सेस दिया कंट्रैक्ट करने का. ओके, और वो मैसेज लेके आ रहा है न्यूरॉन्स, वन बाय वन न्यूरॉन को ऐसे पास करके एंड में मसल के ऊपर आया. तो मसल और न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन है दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये देखा ब्लू कलर्ड बॉल्स, दैट इज एसिटाइल कोलिन एंड न्यूरोट्रांसमीटर. नॉट ओनली एसिटाइल कोलिन, देयर आर नाइट्रिक ऑक्साइड, देयर आर डोपामिन,
this one adrenaline, noradrenaline. There are different neurotransmitters. ऐसे neurotransmitters release करता है muscle में. So muscle को मिला information. तो brain ने किसको भेजा? Neurons को. Neurons has passed it to muscle. तो मसल में अभी आया है कंट्रैक्ट करने का इम्पल्सेस. यहां तक चीजें समझा? अभी मसल क्या करते हैं? मसल में न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिसेप्टर देखो, वो ब्लू कलर्ड वन रिसीव किया, दैट मींस एसिटाइलकोलिन या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज रिसीव्ड हियर. मतलब मसल इज नाउ रेडी टू कंट्रैक्ट. उसको इंफॉर्मेशन मिला है, स्विच चालू किया है अभी. नाउ देखो यहां पे चारों तरफ कुछ चीजें जा रहे हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल. जो नर्व में इलेक्ट्रिक इंपल्सेस चल रहा था वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अभी मसल में चलना शुरू करते हैं. So entire body is actually like a there are lot of transmission of electrical impulses. चाहे वो न्यूरॉन्स हो या मसल हो, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ही जा रहा है. इसको एक्शन पोटेंशियल बोलता है. इट इज नॉट हेवी, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, मिली वोल्ट में रहता है, इसलिए हमें शॉक नहीं लगता है. बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट है. ओके, so this potential is moving across the muscle. जो मसल कंट्रैक्ट करना है वो पूरा मसल में वो इंपल्सेस जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल जा रहा है. तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए क्या कहां से आना है? Impulses should come from the brain. Brain is giving that impulses through neurons. Neuron will pass it to muscle. बीच में जो जंक्शन है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. वहां पे कौन काम कर रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर. एग्जांपल फॉर ए न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन. नाउ एक्शन पोटेंशियल इज रीच्ड इन द मसल. यहां तक समझा? ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल. देखो मसल से रिलेटेड कुछ टर्म्स याद करना है. मसल की मेम्ब्रेन को बोलता है, मसल इज अ सेल राइट, दैट यू अंडरस्टूड. तो उसमें सेल को सेल मेम्ब्रेन रहता है. हम नॉर्मल सेल को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. मसल की मेम्ब्रेन को हम बोलना है सार्कोलेम्मा. सार्कोलेम्मा. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए मसल सेल. मसल की साइटोप्लाज्म को बोलता है सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्म. मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Some special terms are given to the cell membrane, cytoplasm and endoplasmic reticulum of the sarcomere, that means muscle. Sarcolemma is the plasma membrane, sarcoplasm is the cytoplasm, sarcoplasmic reticulum is the endoplasmic reticulum. और भी है, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम बोलते हैं, but not needed. अभी ये तीन टर्म्स याद रखो. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा आयन प्रेजेंट है? कैल्शियम. Ca2+ आयन्स रहता है. ये Ca2+ आयन्स आर वेरी क्रूशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन. इसके बिना मसल कंट्रैक्शन होता ही नहीं है. सो कैल्शियम 2+ आयन्स रिलीज करना है एक्शन पोटेंशियल आने के बाद. एक्शन पोटेंशियल आया तो तुरंत कैल्शियम आयन्स रिलीज किया. कैल्शियम आयन्स कहां से रिलीज होता है? इट्स लाइक ए बैग खोल के बैग के अंदर से कैल्शियम बाहर आ रहा है. बैग क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो कैल्शियम बाहर आ गया मतलब सेल के अंदर ही है, मसल के अंदर बहुत सारा कैल्शियम ऐसे भर गया. अभी देखो क्या हो रहा है. आर यू एबल टू सी व्हाइट डॉट्स हियर? व्हाट इज दिस व्हाइट डॉट रिप्रेजेंटिंग हियर? कैल्शियम आयन. दिस व्हाइट डॉट देखा? कैल्शियम पूरा भर रहा है मसल के अंदर. देखिए नॉर्मल स्टेट में एक्टिन अलग, मसल मायोसिन अलग, दोनों अटैच्ड नहीं है. एक्टिन अपनी जगह पे, मायोसिन अपने जगह पे, दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन ही नहीं है नॉर्मल रिलैक्स्ड स्टेट में. अभी क्या करने के लिए जा रहा है? कंट्रैक्शन करने के लिए जा रहा है. इंपल्सेस आया ब्रेन से, दैट पास ऑन किया मसल को, मसल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया. अभी कौन सा आयन रिलीज करना चालू करते हैं मसल के अंदर? कैल्शियम. ये कैल्शियम आयन की रिलीज की वजह से कैल्शियम विल गो एंड बाइंड टू दैट ब्लू कलर्ड प्रोटीन. जियान, व्हाट इज दैट ब्लू कलर्ड प्रोटीन व्हिच आई टोल्ड 5 minutes बिफोर? नेहा, ट्रोपो, ट्रोपो मायोसिन या ट्रोपोनिन? ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड कर रहा है कैल्शियम आयन. आर यू एबल टू सी दिस? ट्रोपोनिन इज मास्किंग समथिंग. व्हाट इज इट? कुछ देर पहले मैंने बोला ट्रोपोनिन इज हाइडिंग समथिंग.
छुपा के पकड़ के रखा है? मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन आके बाइंड करने का जो जगह एक्टिन में है ना, मायोसिन बाइंडिंग साइट, वो अभी रिवील करने के लिए जा रहे हैं। वो रिवील करने के लिए कौन आके बैठना है ट्रोपोनिन के ऊपर? ट्रोपोनिन आके ऐसे, कैल्शियम आके ट्रोपोनिन के ऊपर बैठा, हटो वहां से, और मायोसिन को अभी दिखा सकते हैं, देख सकते हैं किसको? मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो कैल्शियम इज बाउंड टू ट्रोपोनिन, इसकी वजह से कंफर्मेशन ऑफ ट्रोपोनिन एज वेल एज ट्रोपोमायोसिन चेंज हो गया। ट्रोपोमायोसिन है ना, वो पिंक लाइन, वो भी उसका कंफर्मेशन चेंज किया, ट्रोपोनिन वहां से गया। which means that now the active binding site, are you able to see this sites? ये जो येलो कलर की डॉट्स दिख रहा है यहाँ पे, येलो कलर की डॉट्स, इट्स क्लियरली विजिबल राइट? येलो कलर की डॉट्स, दैट इज द मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो नीचे जो मायोसिन का, ये मायोसिन है, वो अभी पता चल गया होगा ना, दिस इज मायोसिन बिकॉज यू आर एबल टू सी द हेड, प्रोसाम दिख रहा है ना, वो जाके अभी एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट को पकड़ रहा है। एक नहीं, ये पूरा पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ के वो ऐसे खींचते हैं। ओके, सो दे आर गोइंग टू होल्ड व्हाट? होल्ड द मायोसिन बाइंडिंग साइट ओवर एक्टिन। नाउ एक्टिन और मायोसिन एक हो गया, इसको बोलता है क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज कैसे फॉर्म करते हैं? कैल्शियम आके ट्रोपोनिन के ऊपर बैठना पड़ेगा, ट्रोपोनिन वहां से निकल जाते हैं, ट्रोपोमायोसिन का कंफर्मेशन चेंज होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट विजिबल होता है, मायोसिन हैज नाउ रेडी टू अटैच टू एक्टिन। इसे एक्टिन में पकड़ा हुआ मायोसिन को बोलता है क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन समझा? अभी क्रॉस ब्रिज पुल करते हैं, सो दे आर लाइक गोइंग टू स्लाइड ओवर ईच अदर। इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी भी बोलता है, मसल कंट्रैक्शन को, क्योंकि एक्टिन मायोसिन का स्लाइडिंग हो रहा है यहाँ पे, दे आर पुलिंग। ओके, सो ये स्लाइड आपको देख सकते हैं, ये देखिए, इट इज गोइंग टू अटैच टू द एक्टिन। अभी तक पकड़ा नहीं, पकड़ने के लिए क्या चाहिए? पकड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। साइट विजिबल है तो तुरंत जाके नहीं पकड़ता है, वहां तक जाके पकड़ने के लिए मायोसिन को एटीपी चाहिए। सो 1 एटीपी शुड बाइंड एंड एटीपी विल बी यूज्ड। यूज किया मतलब एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपी की एक फॉस्फेट तो ब्रेक करना पड़ेगा, सो दैट वो एनर्जी यूटिलाइज करके इसको इसमें अटैच करके क्या कर सकते हैं? एटीपी यूटिलाइज करके क्या कर सकते हैं? पुल कर सकते हैं। अभी क्या पुल किया, कंट्रैक्ट किया, तो फिर क्या भी करना है? रिलैक्स भी करना है ना, जैसा था वैसे छोड़ना है उसको। आफ्टर द कंट्रैक्शन, हमारा पर्पस होने के बाद उसको रिलैक्स भी करना है। तो रिलैक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनदर एटीपी मॉलिक्यूल आके बैठना है, अनदर एटीपी यूज करके ये क्रॉस ब्रिज हटाना पड़ेगा, अदरवाइज इट कांट मूव टू द ओरिजिनल पोजीशन। समझा? अभी क्रॉस ब्रिज स्टेट में पुल करके टेंशन स्टेट में बैठा है, अभी उसको रिलैक्स स्टेट में लाने के लिए वी हैव टू रिमूव दैट क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज रिमूव करने के लिए अनदर एटीपी आके बैठना पड़ेगा मायोसिन में, सो इसकी वजह से वो हट गया। देखो, अनदर एटीपी एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, सो दैट द क्रॉस ब्रिज हैज ब्रोकन नाउ। क्रॉस ब्रिज ब्रेक किया तो अभी मायोसिन बाइंडिंग साइट ऐसे एक्सपोज करके पकड़ना है क्या? ये येलो डॉट्स एक्सपोज करके पकड़ना है क्या? ब्रेक हो गया ना, ब्रेकअप हो गया, अभी वो ऐसे एक्सपोज करने का जरूरत नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? इट हैज टू बी कवर्ड बाय ट्रोपोनिन वंस अगेन। ट्रोपोनिन वापस आके कवर करते हैं। ट्रोपोनिन वापस आके कवर करने के लिए किसको वहां से हटाना पड़ेगा? ट्रोपोनिन अभी कैल्शियम पकड़ के बैठा है ट्रोपोनिन को, सो नाउ द कैल्शियम इज यूजलेस, कैल्शियम नहीं चाहिए अभी, ट्रोपोनिन कैल्शियम से अलग हो गया, ट्रोपोनिन आके वापस अपनी जगह पे बैठा। ओके, नाउ एवरीथिंग इज मास्क्ड, सब अलग अलग जगह पे, जैसा था वैसा ही हो गया। अभी कैल्शियम किधर जाना पड़ेगा? टेल मी, अच्छे से सुना तो बोल सकते, कैल्शियम किधर से आया, वहां पे वापस जाना है। फ्रॉम वेयर डिड कैल्शियम केम? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बैग में वापस जाना है। कैल्शियम विल गो बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पूरा स्टोरी को मैं समराइज कर रहा हूं अनदर स्लाइड में। ये देखिए, दिस इज द समरी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक एक्शन पोटेंशियल आ चुका है, मतलब इंपल्स आ गया है, सो दैट पूरा मसल में अभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द मसल में जनरेट किया, तो यू कैन सी कैल्शियम आयोन्स आर नाउ गोइंग फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैल्शियम आयोन्स, action potential releases the calcium ions inside the muscle. Calcium bind to which protein? Troponin, which is present over the actin.
देखा सेकंड पॉइंट, ट्रोपोनिन में बाइंड किया, ट्रोपोनिन में बाइंड किया तो ट्रोपोमायोसिन का कंफर्मेशन अलग होगा, विच एक्सपोजेस मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गया। अभी मायोसिन में एटीपी आके बैठना है सो दैट मायोसिन कैन बाइंड टू द मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन एक्टिन, वैसे क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया है। फिर क्या करना है, पुलिंग करना है, स्लाइडिंग करना है, खींचना है, खींचा तो कंट्रैक्शन हो चुका है, खींचते टाइम में इजेड लाइन कम क्लोज टुगेदर। ओके, देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सार्कोमियर की लेंथ तो शॉर्टन होता है ना, वो ऑलरेडी मैंने बोला इजेड लाइन पास में आया तो सार्कोमियर की लेंथ तो शॉर्टन हो गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, पूरा पॉइंट समझ रहा है? फिर एक बार कंट्रैक्शन हो गया तो फिर नाउ इट्स द टाइम फॉर रिलैक्सेशन। सो रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम वापस जाना पड़ेगा ट्रोपोनिन को छोड़ के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, which means that troponin will come and sit over actin once again. Tropomyosin, troponin सब actin के ऊपर वापस आके बैठेगा। Actin is now returned to the original conformation. वैसे actin और myosin relaxed state में घुस गया। This is the entire story of muscle contraction. With this, we are ending muscle contraction की entire revision. अभी skeleton, locomotion के साथ muscle में skeletal muscle पढ़ रहा है तो skeleton के ऊपर है ना muscle, तो bones के बारे में भी हम पढ़ना पड़ेगा। Now we are approaching another chapter, human skeletal system. Skeleton, we can, how many bones are there in human body? 206 बोला बराबर, 206 आर देयर। ये 206 बॉन्ड्स में 80 बॉन्ड्स को एक्सियल स्केलेटन में, और बाकी कितना है 206 माइनस 80, 206 माइनस 80, 1 2 6, 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। So 80 bonds are present in axial skeleton, 126 bonds are present in appendicular skeleton. यहाँ पे ही दिख सकते हैं, ये जो skeleton दिख रहा है ना, देखा है skeleton को रियल में, नकली skeleton को देखा होगा ना, यस। तो इसमें शेड किया हुआ रीजन देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पार्ट में जो है स्कल, रिब्स, वर्टिब्रा, ये सब मिला के एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। While the girdles and the limb, इस बोन्स को अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोलते हैं। ये देखो शेड किया हुआ, गिर्डिल एंड लिम्ब, वो सब कुछ, हाथ पैर वो सब कुछ अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। क्लियर हो गया? 2 टाइप ऑफ स्केलेटन। पहले कौन? अक्षल, अक्षल स्केलेटन, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब, ऐसे सोचो। स्कल, स्कल के पीछे यू नो दैट एंटायर बैकबोन चल रहा है, उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ओके, सामने क्या है? रिब्स रहता है, रिब्स, रिब्स के सेंटर में डागर बोन रहता है, दैट इज स्टर्नम। इतना मिला के बोलते हैं व्हाट एक्सियल स्केलेटन। तो स्कल की बोन्स यू कैन सी, स्कल देखो, स्कल में एक्चुअली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्रेनियम पार्ट, पर फेशियल बोन अलग है, ये वाला पार्ट तो फेशियल है ना, तो उसको छोड़ो। हेलमेट जैसा यहाँ से लेके यहाँ तक जो बोन्स रहता है, दैट इज क्रेनियम। क्रेनियम इज द बोनी कवरिंग ऑफ, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन। ओके, तो ये क्रेनियम, क्या इसको क्रेनियम बोलते हैं ना। क्रेनियम में क्या क्या बोन्स रहता है? यू कैन सी फ्रंटल बोन, दिस इज फ्रंटल बोन, ये फोरहेड रीजन में जो है वो फ्रंटल बोन बोलता है। एंड ये जो रीजन, ये जो होता है ऑलमोस्ट ये साइड में, दिस इज नोन एज पैराइटल बोन, पैराइटल दो रहता है। एंड यू कैन सी टेम्परल बोन ऑलमोस्ट दिस रीजन, कान के ये जगह पे। And this one is this one occipital bone, frontal, occipital, parietal, temporal. Okay, तो इसी तरह different bones are there in the skull. अभी facial bones एक बार देखते हैं। facial bones में nasal, palatine, lacrimal, then zygomatic, maxilla, upper jaw, maxilla, mandible, lower jaw, ये सब कुछ रहता है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा बोन है, दैट इज वोमर। देन इनसाइड द ईयर ऑल्सो यू नो देयर आर बोन्स, देयर आर 3 बोन्स इनसाइड द ईयर, दैट ऑल्सो आई विल से। यहाँ पे ना इनर ईयर ऑसिकल्स आर देयर। इनर ईयर ऑसिकल्स का एक अच्छा खासा स्लाइड है, दैट आई विल शो यू। ये देख, इनर ईयर में 3 ऑसिकल्स आर देयर, मालियस, इनका, स्टेपस।
इसमें स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड इन द ह्यूमन बॉडी, वो मिडिल ईयर में होता है, वो ईयर ड्रम के बाद। ओके, तो ये मिडिल ईयर में देर आर 3 स्मॉल बॉन्ड्स, दे आर कॉल्ड द इनर ईयर ओसिकल्स। सो ये मिडिल ईयर ओसिकल्स को 3 नाम्स दिया है, मालियस, इनकस, स्टेपस। ये मालियस इट इज इन द शेप ऑफ ए हैमर, मालियस। अनविल शेप में रहता है इनकस, एंड स्टिरअप, जहाँ पे घोड़े के ऊपर पैर रखने के लिए जो जगह होता है ना, ये स्टिरअप, ये शेप में है स्टेपस। स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट। लॉन्गेस्ट बोन ये है, फीमर है, थाई बोन। लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट समझा रहेगा ना। हाँ, नाउ कमिंग बैक टू दैट स्लाइड इटसेल्फ, ईयर ओसिकल्स 3 है, वो छोड़ दो। यहाँ पे टंग अटैच किया हुआ है, एक मसल, एक बोन, हायोइड, समझा ना, टंग बोन बोलते हैं उसको। तो टंग स्केलेटल मसल बोला मैंने, इट्स नॉट स्मूथ मसल, लगता है स्मूथ है, इट्स नॉट स्मूथ मसल, वो स्केलेटन से अटैच्ड है। कौन सा स्केलेटन है? यहाँ पे हायोइड बोन है, हायोइड बोन में अटैच्ड है। तो स्कल पूरा समझा होगा, क्रेनियल बोन्स भी है, फेशियल बोन्स भी है, इनर ईयर ओसिकल्स भी आएगा, हायोइड बोन भी आएगा। ओके, यस। इसका if you are referring to this PPT, you will be getting different mnemonics to remember the names. Okay, हमको टाइम की कमी की वजह से आई एम मूविंग। तो टोटल स्कल में 29 बॉन्ड्स हो गया। कैसे? 8 बॉन्ड क्रेनियल्स में, 14 बॉन्ड्स फेशियल में, 3 2 कान रहता है तो 6 बॉन्ड्स हो गया। देन हायोइड एक ही रहता है, तो टोटल 29 बॉन्ड्स हो गया। किधर? हाँ, स्कल में। ओके, हम when we learned it in 11th standard we were calculating that. Okay, right. Now coming to axial skeleton की second member, vertebral column. skull हो गया ना वाला portion हो गया। Now it is 80 में 29 का बात पढ़ चुका है। Now the remaining भी पढ़ना चाहिए ना। vertebral column में 26 bonds रहता है। How many bonds are there? 26. Actually at the time of birth it's more than that, 33 रहता है। फिर ना वो फ्यूज करके बैकबोन स्ट्रॉन्ग होता है तो 26 में कन्वर्ट होता है। कुछ बॉन्ड्स ना ऐसे फ्यूज होता है। आई विल टेल यू कौन सा बॉन्ड फ्यूज हो रहा है, सुनो। तो दिस इज द वर्टेब्रल कॉलम। अगर स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? बैकबोन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या बोला? स्पाइनल कॉर्ड ही बोला। स्पाइनल कॉर्ड इज, you know what is spinal cord? Spinal cord is coming, it's part of central nervous system. brain के नीचे से एक क्या हो रहा है, एक thread like structure is there. That spinal cord controls lot of actions in our body. spinal cord protect करना है, उसके लिए रखा है vertebral column। हाँ, तो वर्टिब्रे देखो, एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे में ऐसे इंटरलॉक करके, अच्छे से इंटरलॉक करके पकड़ा है। ऐसे 26 वर्टिब्रे आर देयर। ओके, so we are going to learn the name of vertebrae. First of all, let's classify them into 5. How many types of vertebrae are there? 5. Cervical, thoracic, lumbar, sacrum, coccyx. Repeat after me. Cervical, thoracic, lumbar, sacrum, coccyx. Okay. नंबर देखते हैं। सर्विकल वर्टिब्रे नेक रीजन में पाए जाते हैं। 7 सर्विकल वर्टिब्रे आर देयर। कितना? 7 सर्विकल वर्टिब्रे। देन thoracic वर्टिब्रे चेस्ट रीजन की ऑपोजिट, ये वाले जगह पे होता है। दैट इज, हाँ, वो हाउ मच इन नंबर? 12 इन नंबर। 7 12 सर्विकल thoracic। नाउ थर्ड वन इज लंबार वर्टिब्रे, जो abdominal रीजन की ऑपोजिट में आता है यहाँ पे। तो abdominal वर्टिब्रे दैट इज लंबार वर्टिब्रे, उसको कितना है? 5 इन नंबर। 7 12 5। नाउ अभी देखो, ये लंबार वर्टिब्रे के नीचे सेक्रल वर्टिब्रे रहता है। सेक्रम इज एक्चुअली 5 बोन्स से बनाया है, बट वो 5 बॉन्ड्स फ्यूज करके एक हो गया।
हो जाएगा। यही तो मैंने बोला, मतलब न्यूबॉर्न्स में ज्यादा है लेकिन उसके बाद इट इज गोइंग टू फ्यूज एंड बिकम वन। तो सेक्रम में इवन दो 5 बॉन्ड से बनाए है तो भी वो एक है, एक सेक्रम। देन इसी तरह कोकिक्स भी, इसको टेल बोन बोलते हैं एंड इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, उसको कुछ पर्पस नहीं है। तो ये कोकिक्स टेल बोन है, हमको टेल नहीं है ना तो इसलिए वो पर्पसलेस है। तो कोकिक्स बॉन्ड दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ 3 to 5 bonds which is fused together, स्मॉल बॉन्ड से फ्यूज किया है। तो फ्यूज्ड वर्टेब्रे है ये दोनों, याद रखना। तो काउंट कर सकते हैं एक बार, 7 + 12 कितना है, 19, 19 + 5 24, 24 प्लस 24 प्लस सेक्रम 25, कोकिक्स 26, हो गया ना 26 वर्टेब्रे। 7 + 12 + 5 + 1 + 1। अभी फोर्थ मेंबर ऑफ द एक्चुअल स्केलेटन, थर्ड मेंबर स्टर्नम, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, अभी स्टर्नम। स्टर्नम देखो, स्टर्नम इज द चेस्ट बोन, वर्टिब्रे ये रिब बोलते हैं, रिबकेज, रिबकेज दिख रहा है, रिबकेज की सेंट्रल पोर्शन में रेड कलर में जो दिया है दैट इज स्टर्नम। यहाँ पे भी देख सकते हैं, दिस इज स्टर्नम, देखा डागर जैसा, डागर बोन चाकू जैसा, स्टर्नम। अभी देखो रिब्स क्या है, रिब्स देखते हैं, रिब्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पेयर, यहाँ पे 12 वहां पे 12, टोटल 24, 24 बोन्स की हिसाब हो गया है। हाँ, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स आर देयर। ये 12 पेयर में तुम लोग एक चीज याद रखना है, इसमें हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, फॉल्स रिब, ट्रू रिब, ट्रू रिब, फॉल्स रिब एंड वन मोर वाज देयर, फ्लोटिंग रिब्स, ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग। सबसे पहले ट्रू क्या होता है, फर्स्ट 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये इसको ट्रू क्यों बोलते हैं कि ये 7 किससे अटैच्ड है जियान, स्टर्नम में अटैच्ड है एंटीरियर, पोस्टीरियर वो रिब से अटैच्ड, वर्टिब्रा में अटैच्ड है, पोस्टीरियर पोर्शन में वर्टिब्रा में और एंटीरियर पोर्शन में स्टर्नम में अटैच्ड है, उधर भी कनेक्शन इधर भी कनेक्शन, तो इसलिए वो ट्रू रिब हो गया। ठीक है, अभी ये दो है, ये 1 2 3 मतलब 8 9 10, ये 3 फॉल्स रिब माना जाते हैं। फॉल्स रिब को और एक वर्ड है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, ये एक मेडिकल एंट्रेंस में पूछा था, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल क्या होता है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल इज फॉल्स रिब। तो फॉल्स रिब कितना है, 3 8 9 10, इसको फॉल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज कनेक्टेड, स्टेनम में कनेक्टेड है तो हाँ कनेक्टेड है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ये 7th वर्टिब्रे देखा, ये वाला शेड करने वाला 7 में कनेक्टेड है वो, इट इज होल्डिंग द 7th ट्रू रिब, बट 7th ट्रू रिब इज कनेक्टेड टू स्टर्नम ना, तो इनडायरेक्टली वो स्टर्नम से कनेक्टेड है, तो इसे इनडायरेक्टली स्टर्नम में कनेक्ट किया तो उसको ट्रू रिब नहीं बोल सकते, दैट इज फॉल्स रिब। समझा? अभी दो इनडायरेक्टली भी कनेक्ट नहीं किया है, डायरेक्टली भी कनेक्ट नहीं किया है, ये दोनों को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ओके, बट इट इज अटैच्ड टू द वर्टिब्रा, पीछे अटैच्ड है, हवा में तो खड़े नहीं सकते ना, एक एक जगह पे तो अटैच्ड होना चाहिए, so it is attached to vertebral column but it is not connected to ribs. Okay, तो वो पार्ट हो गया है। so true rib, false rib, floating rib, floating rib बस 11th and 12th वन। अभी देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन चालू करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में गिर्डिल्स एंड क्या आते हैं, लिम्स आते हैं। सबसे पहले हाथ अटैच किया हुआ गिर्डिल है ना, शोल्डर रीजन, इसको बोलता है पेक्टोरल गिर्डिल, पेक्टोरल गिर्डिल। और पैर अटैच किया हुआ, लेग्स अटैच किया हुआ गिर्डिल्स का नाम है हिप रीजन, दैट इज पेल्विक गिर्डिल। तो पेल्विक गिर्डिल, पेक्टोरल गिर्डिल, ये दोनों समझा। पेक्टोरल गिर्डिल पहले देखते हैं, ये वाला पोर्शन। पेक्टोरल गिर्डिल में ओनली 2 बोन्स आर देयर, एक है क्लाविकल, यहाँ पे यू कैन सी ए कॉलर बोन ओवर हियर, क्लाविकल, एंड यहाँ पे टच किया तो यू कैन सेंस ए ट्रायंगुलर बोन ओवर हियर, ये दो जगह पे दोनों। सो बिहाइंड दिस शोल्डर यू कैन सी ट्रायंगुलर स्कैपुला, दिस बोन इज स्कैपुला, एंड सामने जो है दैट इज
क्लाविकल, क्लाविकल और स्कैपुला से बना है क्या? पेक्टोरल गिर्डल। और पेक्टोरल गिर्डल में यहाँ पे कौन अटैच हो रहा है? ह्यूमरस, ह्यूमरस इज द अपर आर्म की बोन, वो अटैच हो रहा है। यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी नामक की कैविटी है, उसमें अटैच होता है, समझा? ग्लिनोइड कैविटी में कौन अटैच करते हैं? ह्यूमरस अटैच करते हैं। वेरी गुड। हाँ, ग्लिनोइड कैविटी देखा, देखो ग्लिनोइड कैविटी में कौन अटैच हो रहा है? ह्यूमरस जाके अटैच हो रहा है। तो व्हाट इज द ट्रायंगल शेप्ड बोन ऑफ पेक्टोरल गिर्डल? स्कैपुला। व्हाट इज दिस लॉन्ग बोन कॉल्ड? दिस वन, सामने जो है उसको क्या बोलते हैं? क्लाविकल। ओके, कॉलर बोन देखा, क्लाविकल, इट्स नॉट कंप्लीटली स्ट्रेट, ऐसे दिखता है। गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल हो गया, बस दो बोन की नाम याद रखना था। और अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस वहां पे होता है, इट्स लाइक ए बॉल एंड सॉकेट, ऐसे ह्यूमरस की हेड बॉल जैसा है, ग्लिनोइड कैविटी सॉकेट जैसा है, तो ऐसे फिक्स हो रहा है, वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं ना, ऐसे आर्टिकुलेट कर सकते हैं, बराबर। आर्म्स, आर्म्स देखो, आर्म्स तो सबको पता है, आर्म्स आर देयर। सो हियर ये जो पार्ट में अपर आर्म में जो बोन रहता है दैट इज ह्यूमरस। यहाँ पे जो दो बोन्स रहता है दैट इज रेडियस एंड अल्ना। यहाँ पे देखो, रेडियस इज एक्चुअली हमारा ये वाला पोर्शन, ये थंब में जो अटैच कर रहा है, दिस वन। आर यू एबल टू फील दिस बॉन्ड? पकड़ के देख लो, रेडियस ऑपोजिट अल्ना, रेडियस अल्ना, समझा? यहाँ पे एक ही बोन है, लेकिन यहाँ पे दो बोन्स रहता है, रेडियस अल्ना। नाउ दिस वन, रिस्ट, ये पोर्शन रिस्ट है ना, तो रिस्ट में कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल्स, सी कार्पल्स, 8 कार्पल्स आते हैं। देन कार्पल्स होने के बाद यहाँ पे मेटाकार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स यू कैन सी, पाम के ऑपोजिट मेटाकार्पल्स आते हैं। मेटाकार्पल्स के एंड में रेड कलर में जो दिख रहा है वो फलांजस है, फिंगर्स होता है। फलांजस अगर देखा तो इसमें दो फलांजस है, 1 2, लेकिन बाकी सब फिंगर्स देखो इंक्लूडिंग लिटिल फिंगर, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स आर देयर, 3 3 3 3, लेकिन इसमें दो ही रहता है, तो टोटल कितना होगा? 3 into 4 12 13 14, टोटल फलांजस 14 रहता है। मेटाकार्पल्स 5 है, कार्पल्स 8 है। रेडियस अल्ना ह्यूमरस, बताओ कितना बॉन्ड्स हो गया एक हैंड में? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना 3 प्लस 5 8, ओ सॉरी ये 8 है, 3 प्लस 8, 8 कितना हो गया? 3 प्लस 8 11 है, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 15 15 नहीं 14, 16 प्लस 14 कितना है? 30, 16 plus 14 30, so 30 bonds are there in one arm, दूसरे आर्म में पकड़ा तो 60 are there। तो हाथ हो गया, अभी क्या बाकी है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में पैर बाकी है, गिर्डल भी बाकी है ना, हिप, पहले गिर्डल पढ़ते हैं। ये गिर्डल देखा, हिप रीजन में जो गिर्डल है इट्स लाइक सो कॉम्प्लिकेटेड, सी दिस इज नोन एज ए कॉक्सल बॉन्ड। देखा, दो कॉक्सल बॉन्ड देखा, कॉक्सल बॉन्ड दिख रहा है, कॉक्सल, ये वाला ये वाला। एक कॉक्सल बॉन्ड की 3 पार्ट्स रहता है, इलियम, नीचे वाला इशियम, बीच वाला प्यूबिस। इलियम, इशियम, प्यूबिस, इलियम, इशियम, प्यूबिस। इसी तरह इधर भी है ना, इलियम, इशियम, प्यूबिस, फ्यूज्ड है कॉक्सल बॉन्ड। एंड एक चीज बोलना था, यहाँ पे आर यू एबल टू सी ए कनेक्शन ओवर दिस रीजन हियर, ब्लू कलर में, उसका नाम क्या है? पढ़ो, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। जैसे ह्यूमरस यहाँ पे स्कैपुला के रीजन है ना, ग्लिनोइड कैविटी में अटैच होता है, इसी तरह हमारा फीमर, द फर्स्ट बोन ऑफ द लेग, अपर लेग की जो बोन है दैट इज अटैच्ड टू द acetabulum। यहाँ पे एक कैविटी रहता है acetabulum, acetabulum में वो नहीं, ये वाला, दिस इज acetabulum, acetabulum, acetabulum में अटैच होता है कौन? ह्यूमरस। ओके,
फीमर ग्लेनोड कैविटी में अटैच होता है ह्यूमरस एंड acetabulum में अटैच होता है फीमर. Now coming to this one, bones of the legs. ये देखिए bones of the legs में सबसे पहले femur, thigh bone. It is the longest and strongest rhyming words in the body. Then इसके लोअर लिम्ब में और दो है, टिबिया फिबुला. जैसे रेडियस अल्ना होता है इसी तरह टिबिया फिबुला. ओके, टिबिया फिबुला एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट में यू कैन सी फीमर टिबिया फिबुला में कनेक्ट करने वाला ये जगह पे नी बोन इज देयर. नी बोन को हम पैटेला बोलते हैं, पैटेला, वो भी पकड़ना पड़ेगा बोन्स में. एंड देन कम्स द टिबिया फिबुला के बाद यहाँ पे सी हाथ में मैंने बोला कार्पल्स है. द सेम वे आंकल में, यहाँ पे रिस्ट देखा, रिस्ट, इसी तरह यहाँ पे आंकल में क्या रहता है, टार्सल्स रहता है. ये कार्पल, वो टार्सल्स कितना है पता है, 7 है. बट यू नो कार्पल्स कितना था, 8, एक कम में टार्सल्स. देन जैसे हमारा पाम के ऑपोजिट मेटाकार्पल्स रहता है, इसी तरह फीट के ऑपोजिट क्या रहेगा, मेटाटार्सल्स रहेगा. मेटाटार्सल्स आर 5 मेटाकार्पल्स की तरह. एंड फलांजस 14 है. क्यों, वो जो टो बोलते हैं ना, द फर्स्ट विंग, द फर्स्ट टो, वो छोड़ के बाकी सब में 3 फलांजस है. फर्स्ट टो में क्या रहता है, 2 बोन्स है, तो 14 रहेगा. टोटल नंबर ऑफ बोन्स काउंट कर सकते हो. टो से शुरू करते हैं. फलांजस में 15, 14, ध्यान नहीं दे रहे, 14. देन मेटाटार्सल 5 हो गया, 14 प्लस 5 19 हो गया. देन टार्सल्स 7, 19 प्लस 7 26 हो गया. 26 प्लस 2 टिबिया फिबुला 28. नी कैप पैटेला कितना हो गया, 29. मैं बीच में काउंट भूल गया था. ओके, 29. एंड देन व्हाट अबाउट दिस ह्यूमरस, एक ही है, 30. तो वैसे वो भी 30 हो गया है. 30 30 30 30 हो गया. नाउ द मेन थिंग, जॉइंट्स क्या होता है, 2 बोन्स की मीटिंग पोजीशन को बोलता है. जॉइनिंग पोर्शन ऑफ 2 बोन्स इज नोन एज जॉइंट्स. जॉइंट्स आर डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट वन फाइब्रस जॉइंट्स क्या होता है, कोई भी तरीके का मूवमेंट अलाउड नहीं है वहां पे. फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल बोन्स इन द क्रेनियम में मैं बोला था ना, फ्रंटल, ओकिपिटल, पेराइटल, टेम्परल, ये सब कुछ के बीच में जो रहता है, दैट इज fibrous joint which do not allow any kind of movement. Okay, then cartilaginous movement are there. Cartilaginous movement, limited movement. Cartilaginous joints provide you limited movement that is present in between the vertebrae. मैं बोला ना, इंटरलॉक करते हैं vertebrae, 26 vertebrae, बीच बीच में कार्टिलेज रहता है, ये वाला कार्टिलेज है. तो लिमिटेड ऐसे we can little bit movement is possible because of our backbone, right? Completely bend नहीं कर सकते, but still we can say that there is limited movement in between the vertebrae. That is because of cartilage. Third one, synovial movement. Synovial बहुत important है, वो अच्छे से पढ़ना है. I will draw a diagram. Okay. Best example ऐसे हमारा finger की 2 bones पकड़ो. This one, phalanges. Okay. Bones के बीच में क्या रहता है, ligaments रहता है. I hope you know ligament. Okay, so एक H shaped cavity यहाँ पे form किया है. This is known as synovial cavity. This is known as synovial cavity. Synovial cavity. And can you see there is a membrane over here? इस synovial cavity की ये वाले जगह पे there is a membrane. That membrane is known as synovial membrane. ये synovial membrane can secrete a fluid called the synovial fluid. Cavity, synovial cavity, membrane, synovial membrane, fluid, synovial fluid. Okay, joint, synovial joint, सब synovial. तो ये synovial fluid से भरा है ये cavity. ये synovial fluid is like a lubricant. वो friction कम करते हैं. Lubricant का काम वही रहेगा ना. तो 2 bonds के बीच में क्या नहीं हो रहा है, friction नहीं हो रहा है, so that there will not be any pain while its movement. So we can easily move that bonds. तो फ्री मूवमेंट पॉसिबल है, तो वहां पे लुब्रिकेंट, साइनोवियल फ्लूइड होना चाहिए, दैट इज साइनोवियल जॉइंट.
समझा? कि साइनोवियल जॉइंट अलग अलग प्रकार का होता है, दैट यू हैव टू कंसिडर। सी बॉल एंड सॉकेट, बता रहा हूं, देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट है ना। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यू कैन सी इन द स्टार्टिंग ऑफ लेग्स एंड आर्म्स, दैट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का अलग अलग टाइप बोल रहा हूं मैं, समझ रहा है? सी जॉइंट्स आर ऑफ थ्री टाइप। सबसे पहले कौन कौन सा बोला मैंने? फाइब्रस, उसमें मूवमेंट नहीं है। सेकंड वन क्या है? थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, कार्टिलेजिनस, वर्टिब्रा के बीच में। अभी क्या बोला? कंप्लीटली मूव कर सकते हैं, दैट इज साइनोवियल। साइनोवियल का डिफरेंट टाइप्स, बॉल एंड सॉकेट रहता है, एंड यहाँ पे जो रहता है सैडल जॉइंट, थंब और ये वाला जगह पे, कार्पल्स के जगह पे, यू कैन फील, यू कैन सी दैट which one? सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट इज लाइक एक का कॉनकेव है, एक का कॉन्वेक्स है, इसी तरह फिक्स हो गया। नाउ gliding joint are present in this angle region, tarsals regions में you can see gliding joint, and you know hinge joint means ये दरवाजे और उसकी वॉल के बीच में हम हिंज लगाते हैं ना, तो वो एक ही डायरेक्शन में, वन प्लेन में हमें दरवाजा ऐसे मूव कर सकते, पूरा ऐसे 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते। हाँ, तो हिंज जॉइंट दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर, ये वाले पोर्शन में हिंज जॉइंट देख सकते हैं। ओके, एंड कॉन्डाइलॉइड जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द दिस रीजन, रिस्ट रीजन। बस थंब के और कार्पल्स के बीच में बोला मैंने क्या? दिस वन सैडल जॉइंट है। बाकी वाले के बीच में दिस इज बिटवीन द tarsals and carpals, you can feel which joint? Condyloid joint. Okay, and one more is pivot joint. Pivot joint is present in between atlas and axis, the first two vertebra के बीच में जो bond है, इसलिए हमें almost move कर सकते हैं neck पर, तो that is known as pivot joint. तो pivot ball and socket saddle gliding condyloid hinge, सिर्फ different types of joints, synovial joints का types रहता है। And coming to the end of this, then we'll discuss few questions. Disorders related to muscular and skeletal system. Okay, तो एग्जाम के लिए ये पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द एंटायर चैप्टर को, कितना बड़ा चैप्टर था, उसको समराइज करके विजुअलाइज करके दिया है। सो इट विल बी इजी फॉर यू इफ यू सी दिस डायग्राम्स एंड ऑल एंड स्टडी। ओके, तो मायस्थीनिया ग्राविस, इट्स एन ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून मतलब हमारा बॉडी का सेल्स हमको ही अटैक कर रहा है। किसको जाके अटैक कर रहा है? असिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को अटैक कर रहे होंगे ना। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, यस। एंड यू नो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पता है ना क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आई टोल्ड यू, न्यूरॉन मसल को इंपल्सेस देना पड़ेगा, वहां पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रहता है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। असिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। असिटाइल कोलिन रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स रखा है मसल में, ये रिसेप्टर्स को जाके डैमेज करते हैं हमारा सेल्स। रिसेप्टर डैमेज हो गया मतलब ब्रेन अपना काम करेगा, ब्रेन इंपल्सेस दे रहा है, कंट्रैक्ट करो, लेकिन कितना भी बोलने के बाद मसल कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्रॉस करके जो इंपल्सेस आया है उसको मसल तक पहुंच नहीं पा रहा है, बिकॉज द रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड। समझा? तो रिसेप्टर्स को जाके खराब किया हमारा खुद का, कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हम ही रेस्पॉन्सिबल है। तो इट इज ऑटो इम्यून मस्कुलर डिसऑर्डर। So it is most commonly affected in the eyes, face as well as swallowing, यहाँ पे वो रीजन पे प्रॉब्लम होता है। Then muscular dystrophy, ये देखो, weak eye muscle is a chief sign of what? Myasthenia gravis. मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जा रहा हूं मैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये जेनेटिकली इनहेरिट होता है, वो नहीं होता है जेनेटिकली, ये अपने आप हमको है, तो हम हमारे बात कुछ नहीं। हाँ, ये देखो मस्कुलर डिस्ट्रोफी कैसा है? जेनेटिकली है, एक तो इट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स डीजनरेट करके जा रहा है। एंड में स्केलेटल मसल काम ही नहीं करेगा, इट्स गोइंग टू डीजनरेट, राइट? काम नहीं कर रहा है, मसल्स आर गोइंग टू डाई। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो नॉर्मल मसल देखो कितना ब्रॉड है, अफेक्टेड मसल देखो पतला हो गया, एक मसल फाइबर। सो यू कैन सी द डिफरेंस, वीक हो रहा है वो। एंड वैसे यू कैन सी द अफेक्टेड लेग्स ऑफ ए बेबी हियर, ऐसा वाला कंडीशन होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। अभी टेटनी,
टेटनी में क्या होता है कि रैपिड स्पासम्स, वाइल्ड कंट्रैक्शंस होता है, क्रैम्प्स आते हैं ना कभी कभी हमारा, इसी तरह वाइल्ड कंट्रैक्शन, तो कितना पेनफुल रहेगा वो सोचो। इस वाई इट इज बिकॉज कैल्शियम 2 प्लस आयोन डिक्रीज हो गया, so action potentials are spontaneously generated and cause the muscle to contract. एक्शन पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब कंट्रैक्ट करो कंट्रैक्ट करो कंट्रैक्ट करो ऐसे बोलते ही रह रहा है कौन, ब्रेन। तो मसल को ओवरलोड आ रहा है ना, कंट्रैक्ट करने से ज्यादा काम करने के लिए बोला, सो विगरस कंट्रैक्शन हो जाएगा। सो इट्स लाइक फायरिंग, राइट, फायरिंग ऑफ द मसल हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, ज्यादा हुआ तो अमृत भी शहर जैसा है, वही प्रॉब्लम, दैट इज इट, टेटनी। तो हैंड, फीट, वॉइस बॉक्स, ये वाले जगह पे क्या होता है, टेटनी होता है। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, अभी मैं साइनोवियल मेम्ब्रेन एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, साइनोवियल फ्लूइड बनाते हैं, हाँ, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन हम हमारा खुद का सेल्स जाके उसको अटैक किया, इट्स आल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन विल नॉट मेक साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड नहीं है तो क्या रहेगा, दर्द लगेगा अगर दो साइनोवियल मेम्ब्रेन में कनेक्टेड किया हुआ बॉन्ड्स अगर ग्लाइड किया तो, सो फ्रिक्शन विल फील एंड वी फील पेन, जॉइंट पेन, ज्यादातर बुजुर्गों में होता है ये, तो यहाँ पे पेनिंग सेंसेशन होता है बिकॉज ऑफ दैट tear and wear occurring due to friction. Osteoporosis, एज की वजह से लोगों में कैल्शियम की कमी होता है, कैल्शियम अगर कम है तो क्या होगा, पेन लगेगा ना, तो कैल्शियम कम है तो इट्स लाइक बोन में कम है, ब्लड में ज्यादा रहे, तो बोन से ब्लड में कैल्शियम जा रहा है, तो बोन बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, वो कैल्शियम हम हमारा ब्लड में ले रहा है, विच मीन्स दैट दैट बोन इज नाउ होलो, बोन में कुछ नहीं है, बहुत पतला हल्का हो गया, कहीं पे गिरा तो टूट जाएंगे जल्दी, फ्रजाइल है, सो बोन्स बिकम इतना लाइट वेट, बोन वेट बिल्कुल कम रहेगा, सो ऐसे पोर्स बन जाएगा बोन्स के अंदर, एंड द मेन थिंग यू हैव टू कंसिडर इज इट इज ऑकरिंग इन विमेन आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल कम होता है ना, एस्ट्रोजन लेवल की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है। गाउट, दिस इज द लास्ट डिसीज, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिक एक्सक्रीटरी सिस्टम सब लोग पढ़ा है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिया यूरिक एसिड सब कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बॉडी से बाहर जाना चाहिए ना, हाँ नहीं जाते, अक्यूमुलेट करता है इन बिटवीन द जॉइंट्स, कितना अच्छा जगह है, जॉइंट्स में जाके बैठते हैं यूरिक एसिड, सो दैट व्हाट हैपेंस, वहां पे पेन लगेगा, सो हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं इसको टेक्निकली, मच यूरिक एसिड इन द बॉडी, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब कुछ होता है। सो जॉइंट पेन की वजह से भी, मतलब आर्थराइटिस की वजह से भी जॉइंट पेन हो सकता है, यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से भी जॉइंट पेन हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस, पूरा चैप्टर अच्छे से समझाना, इंक्लूडिंग द डिसीजेस, एंटायर 2 डिफरेंट चैप्टर्स है एक्चुअली, हमने कंबाइन करके बोला है। अभी इसका आंसर एक बार सोच लो, हम्म, आ क्या है, तुमने आंसर बोला, क्या बोला, सी, बी, पीछे नेहा और साक्षी और जियान, सी, ओ क्यों, बस अनन्या ही बोल रहे हैं अभी, अनन्या डू यू फील लाइक दिस इज ट्रू, ये सही है क्या, ये वही कौन सा सेकंड रीजन, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, अभी तो मैं बोला मेनोपॉज के बाद ज्यादा होता है, मेनोपॉज के बाद तो ईस्ट्रोजन कम रहेगा ना, तो लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, डिड यू अंडरस्टैंड, तो ऑस्टियोपोरोसिस लो लेवल की वजह से हो रहा है, हाई लेवल की वजह से नहीं, तो ये इंक्रीज्ड ये वाला स्टेटमेंट ये गलत है, समझा। अनदर क्वेश्चन, देखो सी इज द आंसर, ये भी इजीली बोल सकते हैं, बिकॉज आई नोटेड दैट
You all were listening very carefully. Interestingly सुन रहा था. So you can answer this. इतना टाइम काफी है ना? जियान सी, नेहा साक्षी, अनन्या डी, फाल्गुनी डी. टू मेक इट इजियर मैं बताता हूँ. ट्रू रिब को वर्टिब्रो स्टेनल बोलते हैं, फॉल्स रिब को वर्टिब्रो कॉन्ड्रल बोलते हैं एंड फ्लोटिंग रिब को वर्टिब्रल बोलते हैं. डी. तो वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट था. तो वर्टिब्रो स्टेनल ट्रू, ट्रू रिब. वर्टिब्रो कॉन्ड्रल फॉल्स, फॉल्स रिब. वर्टिब्रल फ्लोटिंग रिब. समझा ना? तो डी इज ट्रू. अभी ये and it's actually related to evolution. Still, let's consider it. Similarity of bone structure in the forelimbs of many vertebrates is an example of what? Vertebrates. Vertebrate का कौन है? Common ancestor same है. Common ancestor same है तो analogy है क्या? Common. एक ही कॉमन एंसेस्टर डाइवर्ज. HDAC भूल गया. होमोलॉगी मींस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब कॉमन एंसेस्टर है. हाँ. Oh, sorry 11th standard students, you may not be getting anything, but इस साल में सिखाऊंगा. आंसर इज होमोलॉगी बिकॉज कॉमन एंसेस्टर है सारा वर्टिब्रेट्स को. एक ही एंसेस्टर से डिफरेंट डिफरेंट डिसेंडेंट्स हो रहा है, तो दैट इज होमोलॉगी. तो होमोलॉगस ऑर्गन है. होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन. सी. Types of synovial joints. Match the following. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज कंसिडर करो. कार्टिलेजिनस जॉइंट हमारा ऑलरेडी मैं सिखाया, लिमिटेड मूवमेंट होता है. देयर आर थ्री टाइप ऑफ जॉइंट्स बेसिकली, राइट? फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल. कार्टिलेजिनस तो लिमिटेड मूवमेंट है, वो तो बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रा ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम था. तो A2. तो अभी ये रहेगा या सी रहेगा वो देखना पड़ेगा. ए बॉल एंड सॉकेट इज बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल एंड ह्यूमरस, बराबर. तो B4. तो ये भी B4 है. नेक्स्ट फाइब्रस जॉइंट. फाइब्रस जॉइंट किधर है? बिटवीन द स्कल बोन्स. C1. D3. saddle joint, it is between carpal and metacarpal of the thumb. समझा? A था आंसर. You are correct. Which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column? NEET 2022. इसी है ना एक्चुअली. नीट इज इसी. ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसी है. बोलो. कार्टिलेज. कार्टिलेजिनस बोन्स आर प्रेजेंट, जॉइंट्स आर प्रेजेंट. ये भी मैच द फॉलोइंग कर सकते हो.
टाइम की कमी की वजह से मैं करूं, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन कौन रहेगा? वेरी गुड, स्कैपुला। तो A4 आंसर डी। एक ही इसमें से हमें मिला ना। देखो, क्रेनियम, क्रेनियम विल बी फाइब्रस जॉइंट, स्कल की क्रेनियम के बीच में जो जॉइंट्स है वो। स्टर्नम, स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन, एंड vertebral column cartilaginous joints are इस पिवट जॉइंट, पिवट जॉइंट मैं दिखाया था यहाँ पे एटलस एक्सिस के बीच में। वो कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट है। यस, वेरी गुड। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स में पाइवट वो सब कुछ कॉन्डाइलॉइड, पाइवट, सार्डिलर, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, ये सब कुछ साइनोवियल जॉइंट्स है। 2014 नीट है, एक बार देखो। करेक्ट, एक ही करेक्ट रहेगा इस पे। देखिए, हिंज, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल गलत है ना। वो कौन सा था? बॉल एंड सॉकेट था। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, वो सही है एक्चुअली। मैं दिखाया था ना, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ द थंब में सार्डिल है, लेकिन कार्पल्स के और टार्सल्स के बीच में ग्लाइडिंग। दिस इज एक्चुअली द करेक्ट स्टेटमेंट। ये रॉन्ग है। फ्रंटल एंड पैराइटल जॉइंट, कार्टिलेज, फ्रंटल पैराइटल के बीच में कैसे कार्टिलेज होगा? वो फाइब्रस है ना। देन पिवट जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्विकल वर्टेब्रे, वो भी कैसे होगा? पिवट जॉइंट किधर का है? ये ना अटलस एक्सिस के बीच का है। या तो ग्लाइडिंग जॉइंट इज बिटवीन द कार्पल्स, दैट इज द ट्रू। ये क्वेश्चन भी आंसर करके हम आज की क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल? नीट 2021 ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा कितना है ना, सबको पास हो जाएगा। These muscles have no striation, they are involuntary muscles, communication among the cells is incorrect statement बोलना है। स्मूथ मसल का पूछ रहा हूं। देखो, ब्लड वेसल्स की वॉल में है, सही है, इनर बॉडी में है, इनवॉलंटरी मसल है, स्मूथ और कार्डियक इनवॉलंटरी है, स्ट्राइएशंस नहीं रहता है, तो ये तीनों सही है, तो देन दिस विल बी द रॉन्ग वन। अभी तुम लोग पूछेंगे इंटरकलेटेड डिस्क क्या है? वो कार्डियक मसल में होता है। कार्डियक मसल में मैं जो स्ट्राइएशंस बोला था ना, बीच बीच में मैं स्ट्राइएशंस ड्रॉ किया ना, दिस इज इंटरकलेटेड डिस्क। द स्ट्राइएशंस इन बिटवीन द ईच सेगमेंट्स जो होता है इंटरकलेटेड डिस्क होता है, वो कार्डियक में आता है, इसमें नहीं। समझा? सो आई होप यू अंडरस्टूड। रिमेनिंग क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस योरसेल्फ। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो देन यू कैन अप्रोच मी। आई होप एंटायर चैप्टर अच्छे से समझा। अभी एक क्विक रिविजन करके गया तो, अभी नहीं, एग्जाम में गया तो यू विल बी able to answer all the questions from this chapter. Thank you.